کیو ایم اور نون لیگ نے مشترکہ انتخابی حکمت عملی پر اتفاق کرتے ہوئے مل کر الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں ایم کیو ایم کے وفد نے نواز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد ایم کیو ایم اور نون لیگ کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی، جس میں سعد رفیق نے کہا کہ 8 فروری کا الیکشن رواداری کے ماحول میں لڑنے جا رہے ہیں۔ فاروق ستار نے کہا کہ ملک کے تمام مسائل کا حل کسی ایک جماعت کے پاس نہیں۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ کراچی دودھ دینے والی گائے ہے تو اسے چارہ تو کھلائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی آصف علی زرداری نے کہا کہ تحریک انصاف کو اقتدار کے لیے نہیں ہٹایا، اس لیے ہٹایا تھا کہ ان سے حکومت چل نہیں رہی تھی۔ ہمارے مخالفین الیکشن میں کھڑے ہوں، ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ ہم نے اپنے دور میں پاور پارلیمنٹ کو دی تھی، ہم نے صدر کے اختیارات کم کیے تو اس کے پیچھے کوئی بات تھی، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ حکومت چل نہیں رہی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ نواز شریف سے ذاتی تعلق ہے، وہ بلائیں گے تو چلا جاؤں گا۔ نیب کے ہوتے ہوئے حکومت کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ واحد ادارہ ہے جس کا مقصد صرف سیاستدانوں کا احتساب کرنا ہے۔ الیکشن کا اعلان ہوتے ہی مسلم لیگ کاف نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ مسلم لیگ کاف نے شاہجہانیہ میں جلسہ کیا، جس میں کافروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ چودھری صالح حسین نے اپنے آبائی حلقہ این 64 میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے والد سے ایک ہی چیز سیکھی ہے، کبھی بھی ظالم کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، ہمیشہ مظلوم کی آواز بننا ہے۔ سیاستدانوں کا کوئی کمال نہیں، آپ کے ووٹ سے سیاستدان ایوان تک پہنچتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ نگراں پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت اور وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے غیر قانونی مقیم غیر ملکی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم ملنے کے بعد لاہور سمیت صوبے بھر میں غیر قانونی مقیم تارکین وطن کو پاکستان بدر کرنے کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ کر لیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پنجاب میں ماحولیاتی ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے 4 روز سرکاری چھٹی کا اعلان کر دیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ اسکول کے بچوں کو آنکھوں میں اور سانس کے مسائل آ رہے ہیں۔ میٹنگ میں چند فیصلے ہوئے ہیں۔ 9 نومبر کو پہلے ہی چھٹی کا اعلان ہو چکا ہے۔ مخصوص اضلاع میں جمعرات سے اتوار تک تمام اسکول، کالجز اور سرکاری ادارے بند رہیں گے۔ اسلام آباد کی عدالت نے استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما فواد چودھری کو 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں فواد چودھری کے خلاف فراڈ کیس کی سماعت ہوئی، جہاں پولیس نے فواد چودھری کے سر پر کپڑا ڈال کر انہیں عدالت میں پیش کیا۔ دوران سماعت فواد چودھری نے اپنے بھائی وکیل فیصل چودھری سے مکالمہ کیا کہ توہین عدالت کی درخواست دائر کریں، مجھے سر پر کپڑا ڈال کر عدالت لایا گیا۔ وادی تیرا خیبر میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر کی نماز جنازہ چکلالہ گیریزن راولپنڈی میں ادا، فوجی احساس کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر کی نماز جنازہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، اعلیٰ فوجی اور سول افسران، سپاہیوں، شہیدوں اور شہید کے رشتہ داروں نے بھی شرکت کی۔
साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन कैंपेन में तहलका खेज इंकशाफ। डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास में सदारती मुहिम की रैली के दौरान ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल कासिम सुलेमानी को बताते हुए होशरुबा इंकशाफ कर दिया। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों के दौरान मज़ीद 306 फलस्तीनी शहरी शहीद हो गए हैं। फलस्तीनी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली जारियत से मज़ीद 306 फलस्तीनी शहीद हुए, जिसके बाद 7 अक्टूबर से अब तक शहीद होने वाले अफराद की तादाद 10,328 हो गई है। बयान में बताया गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली कार्रवाइयों के दौरान 78 खवातीन और 139 बच्चे शहीद हुए। मजमूई तौर पर गजा में अब तक 2,719 खवातीन और 4,237 बच्चे शहीद हो चुके हैं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने भारत में महंगे कपड़ों और जेवरात की खरीदारी के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली तमाम खबरों की तरदीद करते हुए उन्हें मन घड़त और बेबुनियाद करार दे दिया। स्टोरी में लिखा गया है कि हम मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश करने वाली अफवाहों की सख्ती से तरदीद करते हैं, जिनके मुताबिक वर्ल्ड कप के दौरान बाबर आजम भारत में महंगे कपड़ों और जेवरात की खरीदारी में मसरूफ अमल थे। अदाकार मोहिब मिर्जा का कहना है कि मर्द कभी शरीफ हो ही नहीं सकता, औरत शरीफ होती है। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में अदाकार मोहिब मिर्जा ने कहा कि जीनियाती तौर पर मर्द का शरीफ होना मुमकिन ही नहीं है। किसी को भी इसके धोखे में नहीं रहना चाहिए कि मर्द शरीफ होता है या हो सकता है औरत शरीफ होती है। मोहिब मिर्जा का कहना था कि सनम सईद से ताल्लुक के लिए अपनी पहली बीवी को धोखा नहीं दिया। शादी खत्म होने के बाद सनम सईद से करीबी ताल्लुक कायम हुआ। शादी में 5 लोग शरीक हुए थे और हमारा निकाह सनम के घर पर हुआ था। मारूफ अदाकारा माहिरा खान ने कौम से अपील की है कि वो अफगान भाइयों बहनों की मदद और हमायत जारी रखें, क्योंकि वतन वापसी के वक्त उन्हें मेहरबानी की ज़रूरत है। साल 2019 से UNHCR में खैर सुगाली सफीर की हैसियत से खिदमत सर अंजाम देने वाली माहिरा ने इंस्टाग्राम हैंडल पर पूरे पाकिस्तान के नाम अपने पैगाम लिखा कि ये लोग अब भी हमारी मेहरबानी और हमदर्दी के मोहताज हैं। उन्हें वापस जाने की सूरत में खतरात का सामना है। माहिरा खान के मुताबिक कई दहाइयों से हमने ज़रूरतमंद अफगान भाइयों और बहनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। मैं अपनी पूरी कौम से अपील करती हूँ कि वो इन लोगों की हमायत जारी रखे जिन्हें उनकी ज़रूरत है। और हाल ही में इख्तिताम पज़ीर होने वाले मकबूल ड्रामा सीरियल मायरी में राहिला का मनफी किरदार अदा करने वाली अदाकार हिबा अली खान ने कहा कि हमारे सईद शोबिज़ इंडस्ट्री की लड़कियों का बड़ा दर्द सबका ख्याल रखते हैं, हसास तबीयत के शख्स हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने कम उम्र में अदाकारी का बाकायदा आगाज किया।
انہیں مرکزی کرداروں کی پیشکش 2009 میں ہوئی ہے، لیکن اس سے قبل ہی انہوں نے کام شروع کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بعض لوگ ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ انہیں بچپن سے ٹی وی پر دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن ایسے لوگ نہیں سمجھتے کہ جب وہ کالج میں تھے تب وہ کام کر رہی تھی۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں کہ ایم کیو ایم اور نون لیگ نے مشترکہ انتخابی حکمت عملی پر اتفاق کرتے ہوئے مل کر الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں ایم کیو ایم کے وفد نے رائے گڑھ میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد ایم کیو ایم اور نون لیگ کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی، جس میں سعد رفیق نے کہا کہ 1.5 سال قبل ایم کیو ایم سے سیاسی اتحاد ہوا، تبھی آج والا اتحاد طے پا گیا تھا۔ 8 فروری کا الیکشن رواداری کے ماحول میں لڑنے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر فاروق ستار نے کہا کہ ملک کے تمام مسائل کا حل کسی ایک جماعت کے پاس نہیں، قومی معیشت کی بات ہو یا قومی سیاست کی، کراچی کا کردار اہم ہے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ انتخابی اتحاد وزارتوں کے لیے نہیں، لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے ہوگا۔ کراچی دودھ دینے والی گائے ہے تو اسے چارہ تو کھلائیں۔ 2013 میں کراچی کی 20 میں سے 17 نشستیں ایم کیو ایم نے جیتی تھیں۔ ہم 2013 والی اپنی پوزیشن پر واپس جائیں گے۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ معاشی ترقی کے لیے ڈبل اسپیڈ سے کام کرنا ہوگا۔ ہمیں صرف پاکستان کی ترقی چاہیے۔ ایم کیو ایم کے ساتھ اشتراک ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے مثبت پیش رفت ہے۔ ہم سب کو مل کر ملک اور قوم کو مسائل سے نکالنے کی جدوجہد کرنی ہوگی۔ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا سمیت پورے ملک کی یکساں ترقی چاہتے ہیں۔ ہر علاقے کی ترقی ہماری ترجیح رہی ہے، کبھی امتیاز نہیں برتا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے کہا کہ تحریک انصاف کو اقتدار کے لیے نہیں ہٹایا، اس لیے ہٹایا تھا کہ ان سے حکومت چل نہیں رہی تھی۔ ہمارے مخالفین الیکشن میں کھڑے ہوں، ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے دور میں پاور پارلیمنٹ کو دی تھی، ہم نے صدر کے اختیارات کم کیے تو اس کے پیچھے کوئی بات تھی، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ حکومت چل نہیں رہی۔ میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی سے حکومت نہیں چل رہی، پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنے دور میں کوئی کام نہیں کیا۔ ہم نے پی ٹی آئی کو اپنے اقتدار کے لیے حکومت سے نہیں ہٹایا، بلکہ اس لیے ہٹایا کہ ملک کی بہتری اور معاشی ترقی ہمارا نصب العین ہے۔ اور اب کچھ بات ماحولیاتی صورتحال سے متعلق تو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پنجاب میں ماحولیاتی ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے 4 روز سرکاری چھٹی کا اعلان کر دیا۔ محسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نگراں کابینہ کی تفصیلی میٹنگ ہوئی۔ بھارت میں پاکستان سے 4 گنا زائد فصلیں جلائی جا رہی ہیں۔ بھارت کی وجہ سے ہمارے لیے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں۔ اسکول کے بچوں کو آنکھوں میں اور سانس کے مسائل آ رہے ہیں۔ میٹنگ میں چند فیصلے ہوئے ہیں۔ 9 نومبر کو پہلے ہی چھٹی کا اعلان ہو چکا ہے۔ مخصوص اضلاع میں جمعرات سے اتوار تک تمام اسکول، کالجز اور سرکاری ادارے بند رہیں گے۔ لاہور ڈویژن، وزیر آباد، گجرانوالہ، ننکانہ صاحب میں چھٹی ہوگی۔ ماحولیاتی ایمرجنسی نافذ کر رہے ہیں۔ مارکیٹیں صرف ہفتے والے دن بند ہوگی۔ مارکیٹوں کے اتوار والے دن ویسے ہی چھٹی ہوتی ہے۔ ریسٹورینٹ، سینما گھر جمعہ، ہفتہ اتوار کو بند ہوں گے۔
मोहसिन नकवी ने कहा कि बेकरीज, फार्मेसीज, शादी घर खुले रहेंगे, हर किस्म के पार्क्स बंद रहेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली रहेगी, टेक अवे रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। किसी ने छुट्टी पर जाना है तो चले जाएं, लाहौर को थोड़ा रेस्ट दें, शहरी मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। उन्होंने कहा कि ये मुस्तकबिल फैसला नहीं, सिर्फ एक दफा करेंगे। फैसले का इतलाक सिर्फ रवां हफ्ते के लिए होगा। इस फैसले पर सख्ती से अमल दरामद जरूर करवाया जाए। दफा 140 के निफाज के लिए सख्ती करना बढ़ेगी। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि कोशिश कर रहे हैं कि फजाई आलूदगी में कमी लाई जाए। 9 नवंबर को बारिश का भी इम्कान है। दहली के भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि लाहौर डिवीजन, गुजरावाला, हाफसाबाद, ननकाना साहब और वसीराबाद में 10 नवंबर को तातील होगी। फैक्ट्रियां बंद करके मजदूरों का चूल्हा बंद नहीं कर सकते। जुम्मे वाले दिन छुट्टी के लिए ताजिरों से दरखास्त करेंगे कि स्मोक का ज्यादा मसला बॉर्डर की दूसरी तरफ से है। वहीं दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का हुक्म जारी कर दिया है। निगरान पंजाब हुकूमत ने विफाकी हुकूमत और विफाकी वजारत दाखिला की जानिब से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म मिलने के बाद लाहौर समेत सूबे भर में गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन को पाकिस्तान बदर करने के लिए सख्त इकदाम का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने IG पंजाब समेत सूबे भर के जिले पुलिस अफसरों को हिदायत देते हुए कहा कि पंजाब में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की तारकीन के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया जाए और उनको हिरासत में लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके मुल्क बदर किया जाए। इस हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नवाज शरीफ से जाती ताल्लुक है, वो जब बुलाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। नैब के होते हुए हुकूमत का निजाम नहीं चल सकता। ये वाहिद इदारा है जिसका मकसद सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब करना है। एक सवाल के जवाब में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, किसी मुशावरत में शामिल नहीं होता। नवाज शरीफ से साथी ताल्लुक है, वो जब बुलाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। खैबर में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की नमाज जनाजा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, आला फौजी और सिविल अफसरान, सिपाहियों और शहीद के रिश्तेदारों ने भी भरपूर शिरकत की है। खैबर में शहीद दीगर शोहदा 31 साल नायक खुशदिल खान, 27 साल नायक रफीक खान और 33 साल लांस नायक अब्दुल कादिर की नमाज जनाजा भी उनके मुतल्लिका आबाई शहरों में अदा की गई। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मादर वतन से दहशत गर्दी की लानत के हर कीमत पर खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आपको अपडेट करते चले इस अहम खबर के हवाले से कि खैबर में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा फौजी एहसास के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। नासिन पाक आर्मी ने मसलूम फलस्तीनी अवाम के लिए इमदाद की दूसरी खेप रवाना कर दी। पाक फौज और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गजा के लिए इमदाद की दूसरी खेप इस्लामाबाद से बरास्ता मिस्र रवाना कर दी। दूसरी खेप 79.6 टन पर मुश्तमिल, जिसमें हुकूमत की जानिब से 40 टन फूड पैक, 3 टन फूड बैग्स, 10.8 टन अद्वियात, 26 टन हिफ्ज़ान सेहत और पाकिस्तान में NGOs के ताउन से बच्चों की किट्स शामिल हैं। उससे कबल पाकिस्तान मजलूम फलस्तीनी बहन भाइयों की इमदाद के लिए मौसम सरमा के लिए 1000 खैमे, 4000 कंबल और 3 टन अद्वियात भेज चुका है। पाकिस्तान की जानिब से रवाना की गई दूसरी खेप का मकसद मुतासिरीन गजा को मज़ीद रिलीफ फ्राहम करना है। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ा है।
साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन कैंपेन में तहलका खेज इंकशाफ है। डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास में सदारती मुहिम की रैली के दौरान ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल कासिम सुलेमानी को मारते हुए होशरुबा इंकशाफ कर दिया है। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन कैंपेन में तहलका खेज इंकशाफ हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास में सदारती मुहिम की रैली के दौरान ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल कासिम सुलेमानी को मारने का बताते हुए होशरुबा इंकशाफ कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने कासिम सुलेमानी के मरने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि जब मैंने कासिम सुलेमानी की मौत का सुना तो ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा था। आपको अपडेट करते चलें इस अहम खबर के हवाले से कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन कैंपेन में तहलका खेज इंकशाफ मंजरेआम पर आया। डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास में सदारती मुहिम की रैली के दौरान ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल कासिम सुलेमानी को मारने का बताते हुए होशरुबा इंकशाफ कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने कासिम सुलेमानी के मरने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि जब मैंने कासिम सुलेमानी की मौत का सुना तो ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा था। वहीं दूसरी जानिब अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान से 25,000 अफगान बाशिंदों की बेदखली रोकने के लिए पाकिस्तान की निगरान हुकूमत से मुसलसल राब्ते में है। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने में उन अफगान बाशिंदों के तहफ्फुज के लिए हॉटलाइन कायम करने के अलावा शनाख्त के लिए खतूत भी जारी कर दिए गए हैं। ये वो लोग हैं जो काबुल में तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने से कुछ अरसा कबल या बाद में अफगानिस्तान छोड़कर पनाह के लिए पाकिस्तान मुंतकिल हो गए थे। अमरीकी हुकाम के बयान में कहा गया कि अमरीका को सबसे ज्यादा तशवीश खतरात में घिरे अफराद की सलामती के हवाले से है जो अमरीका मुंतकिली के ख्वाहिशमंद भी हैं। उनकी सलामती और दोबारा बहाली पाकिस्तान और अमरीका दोनों के मुफाद में है। नासिन पाकिस्तान ने बैरूनी फाइनेंसिंग गैप खत्म करने के लिए एक बार फिर दोस्त ममालिक से रुजू करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक पाकिस्तान को 6.5 अरब डॉलर के बड़े बैरूनी फाइनेंसिंग गैप का सामना है, जिसके बायस निगरान हुकूमत ने सऊदी अरब और UAE समेत दोस्त ममालिक से फिर रुजू का फैसला किया है। जराये ने बताया कि इस्लामी तरक्याती बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक से भी मदद ली जाएगी, जबकि करंट अकाउंट खसारे में कमी के जरिए माली गैप कम होने का इम्कान है। सराय के मुताबिक सालाना 6 अरब डॉलर हदफ के मुकाबले 3 माह में खसारा 94 करोड़ 70 लाख डॉलर रहा और निगरान हुकूमत का अंदाजा है कि करंट अकाउंट खसारा 6 अरब डॉलर से कम होकर 4.5 अरब डॉलर रहेगा। और अब कुछ बात IMF से मुतालिक। तो IMF ने ट्यूबवेल सार्फिन के लिए बजट सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। IMF ने पाकिस्तान से ट्यूबवेल सार्फिन के लिए बजट सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा कर दिया है और पाकिस्तान से डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफे की तफसीलात भी मांग ली है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों की एक्सचेंज कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात फ्राहम करने का भी मुतालबा किया है। पाकिस्तान की मौशी टीम और IMF के दरमियान इक्तसादी जायजा बारे वजारत खजाना में होने वाले मुज़ाकरात के चौथे दौर में IMF ने पाकिस्तान की मजमूई इक्तसादी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। मुज़ाकरात में रवा माली साल की पहली सहमाही की इक्तसादी कारकर्दगी का जायजा लिया जा रहा है। और अब कुछ बात इलेक्शन से मुतालिक। तो इलेक्शन का ऐलान होते ही मुस्लिम लीग काफ ने इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया है। मुस्लिम लीग काफ ने शाहजहानिया में जलसा किया, जिसमें कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर नायब सदर और साबिक विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने अपने आबाई हल्का NA 64 में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अपने वालिद से एक ही चीज सीखी है, कभी भी जालिम के साथ खड़े नहीं होना, हमेशा मजलूम की आवाज बनना है। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि सियासतदानों का कोई कमाल नहीं, आपके वोट से सियासतदान ऐवान तक पहुंचते हैं। चौधरी शुजात हुसैन की वजह से ही मेरी पहचान है। पिछले कुछ अरसे में हमारे खानदान की बहुत बदनामी हुई है।
नाज़रीन, इस्लामाबाद की अदालत ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फवाद चौधरी का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में फवाद चौधरी के खिलाफ फ्रॉड केस की समाअत हुई, जहां पुलिस ने फवाद चौधरी के सर पर कपड़ा डालकर उन्हें अदालत में पेश किया। दौरान समाअत फवाद चौधरी ने अपने भाई वकील फैसल चौधरी से मुकालमा किया कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करें, मुझे सर पर कपड़ा डालकर अदालत लाया गया है। इस पर वकील सफाई फैसल चौधरी ने अदालत में कहा कि मैं तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करना चाहता हूं, क्योंकि गुज़िश्ता समाअत पर भी अदालत ने सर पर कपड़ा डालने से मना किया था। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि इस्लामाबाद की अदालत ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फवाद चौधरी को एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में फवाद चौधरी के खिलाफ फ्रॉड केस की समाअत हुई, जहां पुलिस ने फवाद चौधरी के सर पर कपड़ा डालकर उन्हें अदालत में पेश किया। दौरान समाअत फवाद चौधरी ने अपने भाई वकील सफाई चौधरी से मुकालमा किया कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करें, मुझे सर पर कपड़ा डालकर अदालत लाया गया। नासिर, खबर यह है कि पीटीएम को एतमाद मिली है बगैर नून लीग को एमक्यूएम से इत्तेहाद नहीं करना चाहिए था। कायम मकाम सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राना फारूक सईद का शिकवा है। बोले नून लीग पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि डील तो उन्होंने करनी ही होती है, फजल रहमान को ही एतमाद में ले लेते। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान की तारीख में एक हमेशा की तरह से आज एक इत्तेहाद बना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग और एमक्यूएम के दरमियान। हम इनको मुबारकबाद देते हैं। हमें खुशी है कि ये इकट्ठे होते रहते हैं, फिर इनकी तलाकें भी होती रहती हैं। बहरहाल हम इनको मुबारकबाद देते हैं, इनको ये अलायंस मुबारक। जहां तक मुल्क की मैशत का तल्लक है वो सबको पता है। जिस दिन से नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए हैं, डॉलर ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। ये मैशत का हाल है। मैशत को कैसे ये ठीक करना चाहते हैं, जबकि मैशत तो बर्बाद ही ये करके गए हुए हैं। कैसे ठीक करेंगे? जो चीज बर्बाद हो जाती है तो फिर उसको कौन ठीक करता है? और इसके लिए अगर ये बैठना था तो फिर सोलो फ्लाइट नहीं करनी चाहिए थी। अगर इनके ज़हन में ये है कि पीडीएम था तो फिर इनको सोलो फ्लाइट नहीं करनी चाहिए। पीडीएम को अपने एतमाद में लेते। हम तो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, हम तो इनके वैसे लाई थे। ये पीडीएम को अपने एतमाद में लेते और जो भी डील की थी मौलाना साहब से पूछ के कर लेते। डील तो उन्होंने करनी होती है, हमेशा ये डील करते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। अगर इनको इतना मुल्क का दर्द था तो पीडीएम को तो अपनी को लेकर चलते और इस पे कुछ गौर व फिक्र करते, तो फिर हम कहते हैं हाँ भाई नून लीग। आपने सोलो फ्लाइट की, आप तो उम्मीद बन गया है, अच्छी उम्मीद बन गया है। डॉलर नीचे जा रहा था, ऊपर जाना शुरू हो गया। ये ऐसे नहीं मुल्क चलेगा। और एमक्यूएम का जो हाल है कराची में, वो उसको पता है। एमक्यूएम तो इंतजार कर रही है कि जनरल ज़िया का, उसने इनको सीटें दी। जनरल मुशर्रफ का, उसने इन पे शफकत की। जनरल बाजवा साहब ने भी थोड़ी सी शफकत की, लेकिन अब ये कहते हैं कि वो हमारी विरासत हमें दो। जो विरासत नहीं थी, वो डाकू राज था, वो कत्लो गारत का राज था, वो कराची की तबाही का राज था। वो कोई इतना अच्छा राज नहीं था। और इतने इन्होंने जिस तरह से कराची को लूटा है,
नाज़रीन आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहरियों को बर वक्त इंसाफ की फराहमी का अमल जारी है। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूस मसूद चौधरी की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद किया गया। तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड में डिविजनल SPs ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में कत्ल, ज्यादती, अगवा, डकैती, चोरी, चेक डिसऑनर और फ्रॉड के 32 मुकदमात ज़ेर बहस आए। तफ्तीशी अफसरान और फ्रीकैन ने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। मुकदमात में नाकिस तफ्तीश साबित होने पर मुतादिद थानों के तफ्तीशी अफसरान की सरजनिश और शोकाज नोटिस भी जारी कर दिए गए। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि शहरियों को बर वक्त इंसाफ की फराहमी का अमल जारी है। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूस मसूद चौधरी की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद किया गया। तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड में डिविजनल SPs ने भरपूर शिरकत की। नाज़रीन लाहौर से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन तजावुज़ात के खात्मे के लिए मुतहरिक हो चुका है। दूसरी जानिब मुबश्शिर पटवारी और रेवेन्यू अमले ने मछली मंडी में रेडी माफिया के साथ मिलकर तजावुज़ात माफिया ग्रुप को नवाज दिया। डिप्टी कमिश्नर को रेडियां सड़कों पर लगाने की इजाजत देने के लिए रिपोर्ट पेश कर दी गई। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे मलिक अयान से। जी अयान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं तजावुज़ात माफिया के खिलाफ? बिल्कुल देखें, तजावुज़ात माफिया के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर MCL रातिया हैदर की खुसूसी हिदायत थी, जिसमें गुज़श्ता वीक से जो है ऑपरेशन जारी है, जिसको चीफ ऑफिसर MCL इकबाल फरीद की जेर निगरानी जो है तमाम लाहौर के जोन में ऑपरेशन जो है किए जा रहे हैं। लेकिन लाहौर में एक तरफ तो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन तजावुज़ात के खात्मे के लिए दिन रात जो है कार्रवाइयां करके तजावुज़ात को खात्मे की कोशिश में लगा हुआ है। दूसरी जानिब रेवेन्यू अमला जो कि डिप्टी कमिश्नर के मतहत ही आता है, उनकी जानिब से जो है उनको नवाजने का भी सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज सर्कुलर रोड पर दाता गंजबख्श जोन के एरिया में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें तय बाजारी अमले की जानिब से जो है मछली मंडी के इर्द गिर्द जितने भी काउंटर्स थे, रेडियां थी, उनको जो है जब्त किया गया था, जिसकी वहां पर मौजूद यूनियन की जानिब से जो है गैर कानूनी तौर पर दरखास्त डिप्टी कमिश्नर लाहौर को दी गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मुतलका रेवेन्यू अमले से इलाके के पैमाइश और इलाके में मौजूद लगी रेडियो के हवाले से रिपोर्ट तलब की। जबकि पटवारी मलिक मुबश्शिर की जानिब से रिपोर्ट में कहा गया कि इजाजत जो है मछली मंडी को जो वहां पर रेडी बांध है उनको जो है इजाजत दी जाए। इस हवाले से रिपोर्ट पेश कर दिया मलिक मुबश्शिर पटवारी ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को। हालांकि एक तरफ दोनों जो अमला है वो एक ही जो है सर्कल से निकलते हैं, एक ही जोन से निकलते हैं, जबकि दोनों की जानिब से जो है इस टाइम तू त्राण के जो सिलसिला है वो जारी है। जबकि आज इसी वजह से लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन दाता गंजबख्श जोन के अमले के ऊपर तशद्दुद भी हुआ है। मछली फरोश मंडी के हवाले से जो वहां पर मौजूद ताजर हैं, जो उनकी यूनियन बनाई गई है, उनकी जानिब से MCL अमले की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर मुतलका रेवेन्यू अमला ही हमारा साथ नहीं देगा तो हम किस तरह लाहौर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए जो है कार्रवाइयां अमल में ला सकेंगे। अगर इसी तरह मामला रहा तो रेवेन्यू अमला और MCL अमला के दरमियान मुतल्लिक़ कलामी की वजह से जो नुकसान है वो मुतल्लिक़ा डिपार्टमेंट को ही होता रहेगा। लाहौर में मौजूद तजावुज़ात के खात्मे की जो ख्वाहिश है डिप्टी कमिश्नर लाहौर एडमिनिस्ट्रेटर की, वो ख्वाहिश ही बनकर रह जाएगी। इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, खुसूसी नोटिस लेना चाहिए। मलिक मुबश्शिर की पटवारी की जानिब से जो रिपोर्ट दी गई DC को कि किस वजह से इन्होंने जो वहां पर रेडी बांध है तजावुज़ात माफिया के साथ, ये बताइएगा कि इनके इक़दामात के लिए क्या मुमकिन इम्कानात जरूरी होंगे? ठीक है, अयान से हमारा राब्ता मुनक़िता हो चुका है। इस हवाले से अपडेट कर रहे थे मलिक अयान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दूसरी जानिब शौकत खानम कैंसर अस्पताल की फंड रेजिंग के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, नेक काम का हिस्सा बनने पर खुशी है। मारूफ कवाल आसिफ अली संतू की अमेरिका रवानगी से कबल गुफ्तगू, कहा कैंसर अस्पताल की फंड रेजिंग के लिए अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में 15 शोज होंगे, जिनमें परफॉर्म करना मेरे लिए एहसास की बात है। खबर शामिल करें लाहौर से, जहां चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर ने कहा कि बिजली चोरों के खिलाफ लेस्को का ऑपरेशन खुश आइंद अमल है। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर कहते हैं कि लेस्को हुकाम को अपने अंदर से भी काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। अमले की मिली भगत के बगैर बिजली चोरी नामुमकिन नहीं है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अली फारूक से, जो कि इस वक्त काशिफ अनवर के साथ मौजूद है। जी अली, बताइएगा क्या कहना है काशिफ का?
جی میں اس ٹائم بالکل موجود ہوں لاہور چیمبر آف کامرس میں، جہاں لیسکو کا ایک سیمینار ہوا جس میں آگاہی سیمینار تھا، جس میں صحافیوں نے بھی شرکت کی، اور جبکہ سی ای او لیسکو شاہد حیدر، جبکہ چیئرمین لیسکو حافظ نعمان نے بھی شرکت کی۔ اس حوالے سے ہم کاشف انور سے پوچھتے ہیں، لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر، کہ کیا راز و مقاصد ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، جو آج یہ سیمینار ہوا ہے جس میں چوری کے حوالے سے بھی بات کی، بجلی چوری کے حوالے سے بھی، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس میں یہی بات تھی کہ ہم اگر یہ جو لیسکو ہے اس کے پرائسنگ کا کنزیومرز کی جیب پہ کتنا بڑا امپیکٹ آ رہا ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب تک ہم آلٹرنیٹ انرجی کی طرف نہیں جائیں گے، سولر کی طرف نہیں جائیں گے، ہم ہائیڈل کی طرف نہیں جائیں گے، ہم واٹر ریزروائرز کی طرف نہیں جائیں گے، اسپیشلی کالا باغ ڈیم کی طرف نہیں جائیں گے، تب تک ہم نہیں اپنے جتنے بھی ڈیفیسٹس بڑھ رہے ہیں، اور ہم جو یہ کہتے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ ہمارا سوئی گیس کا، ہمارا سرکولر ڈیٹ بجلی کا بہت بڑھ گیا ہے، تو ہم اس کو تبھی کنٹرول کریں گے۔ لیکن اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ جو لائن لاسز ہیں، چوری ہے، اسے دیکھا جائے۔ اور یہ بات بھی وہاں پر اٹھائی کہ جو چوری ہے، جو کنزیومر چوری کرتا ہے، وہ ڈپارٹمنٹ کی مشاورت کے بغیر نہیں کرتا، ڈپارٹمنٹ کی ہیلپ کے بغیر نہیں کرتا، تو ان ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت اقدامات اٹھائے جانے چاہیے تاکہ یہاں پر چوری نہ ہو۔ اسے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بھی بات کی، اس حوالے سے آپ ہر فورم پہ بات کرتے ہیں اور اس کی حمایت میں؟ دیکھیں میں یہ بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ اویئرنیس میسیجز کو اور پبلک میسیجز کو ہر جگہ پہ دینے کی ضرورت ہے، جس میں اسلامک بینکنگ کی طرف جانے کی بہت ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ ہماری کامیابی نہیں ہو سکتی انڈسٹریلسٹ کی، ہمارے بزنس کمیونٹی کی، ہمارے تاجروں کی، جب تک ہم سود پہ کام کریں گے۔ دوسرا، بجلی سستی کی ضرورت ہے، اور کالا باغ ڈیم جو ہم بہت جلدی جس کو بنا سکتے ہیں، اور جس کو ہم نے ایسے ہی ایک پولیٹیکل ایشو بنا لیا ہے، اور اپنی صحت کو دھیان رکھنے کی۔ اور میں یہاں پر یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ میں یہاں پر کینسر کے مرض کی ضرور بات کرنا چاہوں گا، اور خاص طور پہ بریسٹ کینسر کی، کہ یہ صرف خواتین میں ہی نہیں ہوتا، یہ مردوں میں بھی ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ کا دھیان رکھیں، فزیشنز کو دکھائیں۔ یہ کچھ ایسے میسیجز ہیں جو ہمیں ہر پلیٹ فارم پہ اویئرنیس کے طور پہ دینے چاہیے تاکہ ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ بہتر سے بہتر زندگی گزار سکیں۔ جی گفتگو سنی کاشف انور کی، اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ جی ایک تو لائن لاسز میں کمی آنی چاہیے، دوسرا یہ کہ بجلی چوری لیسکو کے اہلکاروں کی مدد کے بغیر نہیں ہوتی، اس لیے لیسکو کے اہلکار جو کہ بجلی چوری میں ملوث ہیں۔ لوئرما لاہور بم دھماکے میں شہید کانسٹیبل غلام رسول کی برسی، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی شہید کے ورثاء سے ملاقات کی ہدایت۔ آر پی او شیخوپورہ سرفراز الپا اور ڈی پی او قصور طارق عزیز سندھو کے حکم، ڈی ایس پی چونیا ملک سرور اوان کی شہید کی قبر پر حاضری، شہید کی والدہ اور بھائی کے ہمراہ قبر پر پھول چڑھائے اور سلامی پیش کی۔ محکمے کی طرف سے شہید کے اہل خانہ کو تحائف بھی پیش کیے گئے۔ شہید کانسٹیبل غلام رسول 1994 میں بم دھماکے میں شہید ہوئے تھے۔ ہوم اکنامکس یونیورسٹی میں اقبال کا فلسفہ امن و ترقی کے موضوع پر عالمی کانفرنس کا افتتاح ہوا۔ صوفیانہ کلام پر مبنی پرفارمنس پیش کی گئی۔ چین، ایران، بھارت اور تاجکستان سے مندوبین نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات کے مطابق کانفرنس میں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم، وائس چانسلر ڈاکٹر فلیحہ زہرا قاسمی، ڈاکٹر ابو موسیٰ عارف، ڈاکٹر عبدالرؤف رفیق نے شرکت کی۔ ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ علامہ اقبال سے رواداری اور خودی کا سبق ملتا ہے۔ اسلام نے ہمیں حقوق انسانی سکھائے اور بتائے ہیں۔ ڈاکٹر فلیحہ زہرا قاسمی نے کہا کہ معاشرے کی ترقی کے لیے عوام کے درمیان پرامن ماحول ضروری ہے۔ ڈی ایس جی انویسٹیگیشن عمران کیشور کی ہدایت پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ انچارج انویسٹیگیشن پولیس ستو قتلہ عبدالرحمان نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے شبیرہ ڈکیت گینگ کے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مزید تفصیلات کے مطابق گرفتار ملزمان میں شبیر عرف شبیرہ اور اس کے ساتھی علی رضا اور یوسف عرف یوسفی شامل ہیں۔ ملزمان سے 7 عدد موبائل، 3 لاکھ نقدی اور ناجائز اسلحہ برآمد کیا گیا۔ ملزمان گن پوائنٹ پر شہریوں کو اپنی وارداتوں کا نشانہ بناتے تھے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود چودھری نے پولیس ٹیم کے لیے تعریفی اسناد کا اعلان کیا ہے۔
दूसरी जानिब बिजली चोरी पकड़ना हुब्बुल वतनी और चोरों की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है। सीईओ शाहिद हैदर के हुक्म पर एसई सर्कल उमर बिलाल और एक्सियन मैकलोड रोड अमजद नागिरा की टीम ने पुरानी अनारकली की फूड स्ट्रीट में कोयटा होटल वाले को डायरेक्ट सप्लाई से चोरी करते हुए पकड़ लिया। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद सीनियर रिपोर्टर साजिद कासमी से। जी साजिद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी कोहेनूर, सीओ शाहिद हैदर का कहना है कि बिजली चोरी पकड़ना हुब्बुल वतनी और चोरों की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है, जिनके लिए हमारे पास कोई माफी नहीं। आज एससी थर्ड सर्कल उमर बिलाल, एक्शन मैकलोर रोड अमजद नागरा और एक्शन एमएनटी चौधरी मोहम्मद अली की निगरानी में एसटीओ अनारकली मोहम्मद इरफान, एलएस अमार काजमी, मीटर इंस्पेक्टर अली भट्ट, एमएनटी के इंस्पेक्टर फहीम उस्मान ने सब डिवीजन के अमले के साथ पुरानी अनारकली के फूड स्ट्रीट में कोयटा होटल वाले नजीबुल्ला को डायरेक्ट सप्लाई से चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और मौका पर ही गिरफ्तार भी करवा दिया। इस मौका पर एससी उमर बिलाल और एक्शन अमजद नागरा ने कहा कि जैसे ही एक्शन एमएनटी मोहम्मद अली रिपोर्ट तैयार करते हैं, फौरन इसके मुताबिक चोरी का बिल चार्ज किया जाएगा, जो तकरीबन 1 करोड़ के लगभग होगा, और बिल लाजमी रिकवर किया जाएगा। एससी उमर बिलाल ने बड़े पैमाने पर चोरी पकड़ने पर तमाम ऑफिसर्स को शाबाश दी और बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ मजीद जाफिशानी से मेहनत करने की ताकीद की। जी ठीक है, बड़े पैमाने पर चोरी पकड़ने पर मुलाजमीन को शाबाश दी गई। सीनियर रिपोर्टर साजिद कासमी तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अब कुछ बात जंगी सूरत हाल की। तो गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों के दौरान मजीद 306 फलस्तीनी शहरी शहीद हो गए हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली जारहियत से मजीद 306 फलस्तीनी शहीद हुए, जिसके बाद 7 अक्टूबर से अब तक शहीद होने वाले अफराद की तादाद 10,328 हो गई है। बयान में बताया गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली कार्रवाइयों के दौरान 78 खवातीन और 139 बच्चे शहीद हुए। शोबिस की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि अदाकार मोहिब मिर्जा का कहना है कि मर्द कभी शरीफ हो ही नहीं सकता, औरत शरीफ होती है। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में अदाकार मोहिब मिर्जा ने कहा कि जिन्याती तौर पर मर्द का शरीफ होना मुमकिन ही नहीं है। किसी को भी उस धोखे में नहीं रहना चाहिए कि मर्द शरीफ होता है या हो सकता है औरत ही शरीफ होती है। 40 साल गुजार कर भी लोग एक साथ नहीं होते। एक साथ रहकर तकलीफ दे जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि अलग हो जाया जाए। जिंदगी में कोई भी प्रिंस चार्मिंग नहीं आया। जिंदगी को हकीकत पसंदी से गुजारना चाहिए। मोहिब मिर्जा ने कहा कि तलाक और बच्ची से मुतालिक वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल था। ताल्लुक खत्म होना हर किसी के लिए एक तकलीफ दे मरहला होता है। दूसरी जानिब बॉलीवुड की फिल्म डॉन 3 से शाहरुख खान के निकलने के बाद अदाकारा प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर फिल्म की कास्ट में शामिल हो गई हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि मेगा हिट डॉन सीरीज की आने वाली फिल्म डॉन 3 में मरकजी किरदार से शाहरुख खान की छुट्टी होने के बाद बॉलीवुड की सुपरस्टार प्रियंका चोपड़ा फिल्म के नए हीरो रणवीर सिंह के साथ मरकजी किरदार में नजर आएंगी। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि बॉलीवुड की फिल्म डॉन 3 से शाहरुख खान के निकलने के बाद अदाकारा प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर फिल्म की कास्ट में शामिल होंगी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि मेगा हिट डॉन सीरीज की आने वाली फिल्म डॉन 3 में मरकजी किरदार से शाहरुख खान की छुट्टी होने के बाद बॉलीवुड की सुपरस्टार प्रियंका चोपड़ा फिल्म के नए हीरो रणवीर सिंह के मद्दे मुकाबल नजर आएंगी। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।
वेलकम बैक नाज़रीन, खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मैक्सवेल की शानदार डबल सेंचुरी से ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप के अहम मैच में अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी है। आपको अपडेट करते चले खेल के मैदान से कि ऑस्ट्रेलिया ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मैक्सवेल की शानदार डबल सेंचुरी। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप के अहम मैच में अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी है। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 291 रन बनाए। जवाब में हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेटों पर हासिल कर लिया। आपको अपडेट करते चले खेल के मैदान से बड़ी ताजा तरीन सूरत हाल है कि ऑस्ट्रेलिया ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। मैक्सवेल की शानदार डबल सेंचुरी ने ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप के अहम मैच में अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 291 रन बनाए। जवाब में हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। आपको अपडेट करते चले इस अहम तरीन सूरत हाल के हवाले से कि ऑस्ट्रेलिया ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मैक्सवेल की शानदार डबल सेंचुरी ने ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप के अहम मैच में अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी है। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 291 रन बनाए। जवाब में हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। आपको अपडेट करते चले खेल के मैदान से, जहां वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मैक्सवेल की शानदार डबल सेंचुरी ने ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप के अहम मैच में अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 291 रन स्कोर किए। जवाब में हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। आपको अपडेट करते चले खेल के मैदान से, जहां ऑस्ट्रेलिया ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। मैक्सवेल की शानदार डबल सेंचुरी ने ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप के अहम मैच में अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी है। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 291 रन स्कोर किए। जवाब में हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। आपको अपडेट करते चले। आपको बराह रास्त खेल के मैदान में लिए चलते हैं। High intensity exercise, I suppose, in the heat, and it certainly got a hold of me today. And yeah, just luckily enough, we came out with a plan to sort of stay at the same end for a little bit until I could sort of get some movement back. And luckily enough, I was able to stick it out to the end. Talking about plans, your team at one stage was 91 for 7. It looked like that was it. It would have been a record chase anyway at this ground. What were the plans at that stage? Not too much, to be honest. It was basically to, I suppose, stick to our own batting plans for as much as we possibly could. And I suppose for me, it was still trying to be positive, still trying to take them on and trying to produce bad balls or something else I could score off. And I felt like if I just defended my way through that, they would have been able to sort of put a bit of pressure. And even with the LBW that was just going over the top, that was probably the kickstart I needed to sort of tell myself I need to start playing some shots and be a bit more proactive. Obviously, we know it was quite warm, but tell us a little bit about the surface. Did it change as the match kind of went on? Oh, I think you obviously saw a little bit more swing and nip around, I think, under lights, as it always happens throughout this tournament. But to credit to them, they bowled absolutely beautifully up front and put us on the back foot, and their spinners were straight on it as well. So what we probably struggled to do is take early wickets and put them under pressure, but credit to them, they bowled really well up front. We already saw a record-breaking 100 from you in the tournament against the Netherlands. Slightly different situation, of course. How does this 100 rank in your career? Yeah, look, it would have been nice if it was chanceless, but I certainly had my chances. I led a charmed life out there. I was very lucky, and
I suppose just made the most of that. I feel like I've had those types of innings before where I've given a chance and I haven't made the most of it. So to make the most of it and go on with it tonight is probably the most pleasing thing. But yeah, to see it out, be not out with Paddy at the end is something I'm really proud of. You're through to the semi-finals now as well. A big Q next to the name of Australia. How does that feel? Yeah, amazing. I think after the first two games, everyone was pretty quick to write us off, and to come back and win, what's it, 6 straight now is a great effort from this group. The belief is always there, and to win a game like tonight, hopefully that belief spreads through the chain. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मारूफ अदाकारा माहिरा खान ने कौम से अपील की है कि वो अफगान भाइयों बहनों की मदद और हमायत जारी रखें क्योंकि वतन वापसी के वक्त उन्हें मेहरबानी की जरूरत है। साल 2019 से UNHCR में गैर सुगाली सफीर की हैसियत से खदमात अंजाम देने वाली माहिरा खान ने इंस्टाग्राम हैंडल पर पूरे पाकिस्तान के नाम अपने पैगाम में लिखा कि ये लोग अब भी हमारी मेहरबानी और हमदर्दी के मोहताज है। उन्हें वापस जाने की सूरत में खतरात का सामना है। माहिरा खान के मुताबिक कई दहाइयों से हमने जरूरतमंद अफगान भाइयों और बहनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। मैं अपनी कौम से पूरी अपील करती हूँ कि वो उन लोगों की हमायत जारी रखे जिन्हें उनकी जरूरत है। हाल ही में इख्तिताम पजीर होने वाले मकबूल ड्रामा सीरियल मायरी में राहिला का मनफी किरदार अदा करने वाली अदाकार हिबा अली खान ने कहा कि हमायूं सईद शोबिस इंडस्ट्री की लड़कियों का बड़ा दर्द है, वो सबका ख्याल रखते हैं, हसास तबीयत के शख्स हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने कम उम्री में अदाकारी का आगाज किया। उन्हें मरकजी किरदारों की पेशकश 2009 में हुई, लेकिन उससे कबल ही उन्होंने काम शुरू कर दिया था। खेल के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद को बूरी चीफ सिलेक्टर मुकर्रर कर दिया। PCB की जानिब से जारी बयान के मुताबिक साबिक क्रिकेटर वजाहतुल्लाह वास्ती को जूनियर सिलेक्शन कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने भारत में महंगे कपड़ों और सेवरात की खरीदारी के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली तमाम खबरों की तरदीद करते हुए उन्हें बेबुनियाद करार दे दिया है। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन इंस्टाग्राम पर कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से खिलाड़ियों के एजेंट के तौर पर काम करने वाली PR कंपनी की इंस्टा स्टोरी को रीशेयर किया और उन खबरों की तरदीद कर दी। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।